मौसम का महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण वायुदाब मौसम तथा जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवनों की दिशा व गति, वृष्टि एवं ऊष्मा के स्थानांतरण पर वायुदाब का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वायुदाब मौसम के पूर्वानुमान में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। In this video, we'll be discussing the factors related to air pressure and wind which affects the climate of India. वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं। किसी स्थान का वायुमंडलीय भार वहां पर धरातल से लेकर वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैले वायु स्तंभ का भार होता है। वायुदाब समय और स्थान के साथ साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं तापमान, जलवाष्प, समुद्र तल से ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की दैनिक गति। तापमान में प्रादेशिक भिन्नता होने के कारण वायु के घनत्व में भी प्रादेशिक भिन्नता आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रदेश का वायुदाब दूसरे प्रदेश के वायुदाब से अधिक हो जाता है। वायुमंडल में संतुलन बनाए रखने के लिए वायु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। ये पवन भारत की जलवायु को तीन तरह से प्रभावित करती है। The first is the distribution of pressure and surface wind. The second is the upper air circulation and the movement of different air masses and the jet stream. And third is the rainfall caused by the western disturbances in winter and the tropical depression in the southwest monsoon season. We'll be discussing all these 3 points one by one in our next slides. This is the diagrammatic representation of the factors related to air pressure and the wind which affects the climate of a place. The first important factor which affects the climate is the location of 0 degree equator. This is the location of the 0 degree equator line. The second is the direction of the northeast trade winds and the southeast trade winds. Both these winds are merging at the 0 degree equator line and forming an intertropical convergence zone. Here, this helps in the formation of the headless cells, which affects the climate of India greatly. The next factor which affects the climate of a place is the upper air circulation. The air which is getting heated at the equatorial region gets lighter and it rises in the upper atmosphere, which in circulation affects the climate of the place. And as India is located in the northern hemisphere between 8 degree to 37 degrees, it is greatly affected by the direction of these winds plus the upper air circulation. In our next diagrams, we'll be
learning how these factors affect the climate of India. वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं और यह वायुदाब कटिबंधों और पेटियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर और पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायुदाब के 7 कटिबंध बनते हैं। In this diagram we can see the distribution of the different pressure belts found on the Earth's surface. The first is the equatorial low pressure belt, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, which extends 5 degree north and 5 degrees south of the equator. The second is the subtropical high pressure belts, which is found between 30 degrees to 35 degree north and south latitudes. It is also known as the horse latitude, Uposhna Uch Dav Peti. The third is the subpolar low pressure belts, which is found between 60 to 65 degree north and south latitude. And the fourth is the polar high pressure belt, which is found around the poles, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। भूमध्य रेखा पर निम्न दाब पेटी और ध्रुवों पर उच्च दाब कटिबंध जो है वो ताप प्रेरक कटिबंध है। They are thermally induced pressure belt. दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायुदाब कटिबंध और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब कटिबंध गति प्रेरित कटिबंध है। They are thermally induced pressure belts. After understanding the distribution of the various pressure belts, we'll also try to understand the prevailing wind system found on the Earth's surface. The first permanent planetary or the prevailing wind found on the Earth is the trade wind. स्थायी और प्रचलित भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की हैं। पहली है सममार्गीय पवनें, the trade winds, जो कि 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई जाती है। This is the location of the trade winds. The second is the Pachua Hawa or the westerlies, which blow in both the hemispheres from 30 degree to 60 to 65 degrees north and south latitude. And this is the location of the prevailing Pachua Hawas, prevailing westerlies. And the third permanent wind is the polar wind, ध्रुवीय पवनें, जो कि 65 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल के मध्य पाई जाती है। And this whole system of pressure belts and the wind system has a great influence on the climate of India. In our next, the Indian subcontinent lies in the region of northeasterly winds, and these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब पेटियों से निकलती हैं, and after that these winds blow towards the south. They get deflected to the right due to the Coriolis force
and then they move towards the low pressure area near the equator. इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में जाना चाहिए, परंतु फेरेल के नियमानुसार कोरोलिस बल के प्रभाव से ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं, अतः इन्हें पूर्वा पवनें या ईस्टर्लीज भी कहते हैं। Now here a question arises, what is the Coriolis force? Coriolis बल या फेरेल्स लॉ क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे कोरोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण या इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण पूर्वा पवनें उत्तरोत्तर अधिक गर्म और शुष्क होती हैं, इसलिए ये वर्षा नहीं करती, परंतु जब ये किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों में पहुंचती हैं, तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में खूब वर्षा करती हैं। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती। इसी कारण इन अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल स्थित हैं। अगर इस बात को फॉलो करें तो इंडिया वुड हैव बीन एन एरिड लैंड because of these winds, but this is not the case. Why? Because there is high pressure area towards the north of the Himalayas, and the cold winds from this region below to the low pressure areas over the ocean in the south. And during the summer season, the low pressure area develops over the interior Asia and also over the northwestern part of India. And this results in a complete reversal of the direction of the wind during the summer season. In this diagram, we can see how the direction of the wind changes according to the Coriolis force. The fast flowing and the narrow air currents are called jet streams. They flow at higher altitude, about 12,000 feet in the troposphere. And the speed varies from 110 kilometers per hour in summer to 184 kilometers per hour in winters. क्षोभमंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय, नलिकाकार और विसर्पी पवनें जेट प्रवाह कहलाती हैं। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होती हैं। ऊपरी वायुतंत्र में बहने वाली जेट वायु धाराएं भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। In this slide, we can see the location of the jet stream during the winter and the summer season. The first map is indicating the location of the jet stream during the winter season. पश्चिमी जेट वायुधारा शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है और यह हिमालय की श्रेणियों द्वारा
दो भागों में विभक्त कर दी जाती है। इस जेट वायुधारा की उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है और दक्षिणी शाखा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर तक चलती है। और मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जो शाखा है वो भारत की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस जेट वायु धारा के कारण ही भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। उत्तर पश्चिमी मैदान में होने वाली शीतकालीन वर्षा और ओलावृष्टि तथा पहाड़ी प्रदेशों में कभी कभार होने वाला भारी हिमपात इन विक्षोभों का वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का परिणाम है और इसी के प्रभाव से संपूर्ण उत्तरी मैदानी भागों में शीत लहरें चलती हैं। The second map is showing the location of the jet stream during the summer season. इसे पूर्वी जेट वायुधारा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आभासी गति के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन होता है और पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा आ जाती है, चलने लग जाती है, जो तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है और इसके फलस्वरूप पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा विकसित होती है जो कि 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चलती है। यह दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी पवनों में अचानक आने के कारण उत्पन्न होती है। The tropical cyclones and western disturbances also affect the climate of India. उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों की तीव्रता और दिशा दक्षिण पश्चिम मॉनसून काल में भारत के अधिकांश भागों में और पीछे हटते हुए मॉनसून की ऋतु में यानी अक्टूबर और नवंबर में पूर्वी तटीय भागों की मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। And these tropical cyclones cause heavy rainfall in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Orissa coast. कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में भी उत्पन्न होते हैं और भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों को प्रभावित करते हैं। The second is the western disturbances. पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आते हैं और ये भारत के उत्तरी मैदानी भागों में और पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। And due to these western cyclonic disturbances, heavy rainfall occur in some parts of Haryana and Punjab, which is beneficial for the rabi crop, that is the wheat crop. It causes a sudden drop in temperature, जो कि दिल्ली की शीतलहर के नाम से भी जानी जाती है। The snowfall in the higher altitude in the Himalayas and also lead to hails. In this map, this is the region which is affected by the tropical cyclone and this is the region which is affected by the western cyclonic disturbances. The El Niño effect. भारत की मौसमी दशाओं को अल नीना इफेक्ट प्रभावित करता है और ये वर्ल्ड के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बाढ़ और सूखे के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक
सक्रिय गर्म समुद्री जलधारा है जो कभी कभार दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के कुछ दूर दिसंबर के महीने में बहती है और इसकी वजह से पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा बहने लग जाती है और कभी कभी इस इफेक्ट की वजह से समुद्र का ऊपरी जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। It raises the surface temperature of the ocean by 10 degrees। और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर जल जब गर्म हो जाता है तो वो भूमंडलीय दाब और पवनों के साथ साथ हिंद महासागर के मॉनसूनी पवनों को भी प्रभावित करता है। And the meteorologists believe that the 1987 drought in India was caused by this El Niño effect. The next is the La Nina effect, which is opposite to the El Niño effect. यह El Niño के बिल्कुल विपरीत है। El Niño घटना के पश्चात मौसम लगभग सामान्य हो जाता है और कभी कभी सममार्गी पवनें इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उनके प्रभाव से उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट समुद्री जल ऊपर उठने लग जाता है और इससे ठंडी समुद्री धारा पेरू और हम्बोल्ट की जो जलधारा है उसके उत्तर की ओर बहने लग जाता है जिसे ला नीना कहा जाता है। And it brings monsoon showers in India. The Southern Oscillation Index या दक्षिणी दोलन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच होने वाली मौसमी संबंधी उतार चढ़ाव को कहते हैं। The Southern Oscillation is the name given to a seesaw pattern of meteorological changes that are often observed between the Pacific and the Indian Ocean. According to it, जब कभी प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर में वायुदाब कम हो जाता है and vice versa. दक्षिणी दोलन की गहनता को नापने के लिए दक्षिणी दोलन सूचक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रशांत महासागर में फ्रेंच पॉलिनेशिया के तिहती और हिंद महासागर के ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन के बीच वायुदाब के अंतर का सूचक है। दक्षिणी दोलन घनात्मक और ऋणात्मक मूल्य तिहती के वायुदाब में से पोर्ट डार्विन के वायुदाब के घटा देने पर ज्ञात होता है। घनात्मक मूल्य भारत में अच्छी मॉनसून और ऋणात्मक मूल्य भारत के खराब मॉनसून के परिचारक हैं। इन घटनाओं में पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में ±0.4 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन आता है। The El Nino and Southern Oscillation are believed to be interconnected, and these two are together referred to as ENSO. During the high Southern Oscillation phase, precipitation is abundant in Indonesian and Australian region, and relatively dry conditions prevail over the equatorial Pacific, East Central African and North Mexico. During the low phase of the oscillation, the southern rainfall abnormalities are quite opposite. The El Nino is often found to be adversely correlated with the southwest monsoon rain. The intertropical convergence zone is a broad trough of low pressure in the equatorial latitudes. The northeast and the southeast trade wind converge in this zone.
It lies more or less parallel to the equator and is sometimes referred to as the thermal equator. It moves north and south with the apparent movement of the sun. The blue and red lines in the map is showing the location of the intertropical convergence zone in January and July respectively. And this intertropical convergence zone has a great impact on the climate of India. These were some of the important factors related to air pressure and the wind affecting the climate of India. Thank you.